Good morning, class. The next topic is how is land distributed between the farmers of Palampur. In last point, that is, will land sustain? We have already seen that due to modern farming or the green revolution, the land is growing infertile every year. Although the production is increasing, but the fertility of the land is decreasing every year. The second problem, or the second question raised, is how is land distributed? So we all know that the major occupation of village Palampur is agriculture. So now let us see how many people have how much land there. You must have realized how important land is for farming. It is obviously, we all know that land is an essential part for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. But in Vilam Palampur or in generally also, all the people who are working in agriculture sector or an agriculture section have not sufficient land or not no land at all. So in Palampur, about one third of the 450 families, there are 450 families in Palampur, in which 150 family do not have any land for cultivation or no land for cultivation. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plot doesn't bring adequate income for the farmer's family. अगर 450 में से 150 निकाल दें तो रिमेनिंग में से भी 240 फैमिलीज के पास प्लॉट्स हैं बट 2 हेक्टेयर से भी नीचे, एंड इतनी छोटी ज़मीन से उनको एडिक्वेट इनकम नहीं हो सकती फार्मिंग करने से. 2 हेक्टेयर से भी छोटी ज़मीन है. और जो बचा रिमेनिंग, तो 450 माइनस 150 और उसमें से भी 240, तो जो रिमेनिंग बचा उनके पास लार्ज फील्ड्स हैं ना. ऊपर डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हैं. तो फील्ड के साइज़ बने हुए हैं, छोटी ज़मीन, बड़ी ज़मीन और बहुत बड़ी ज़मीन. इन 1960s गोविंद was a farmer with 2.25 hectares of large unirrigated land. With the help of his 3 sons, Gobind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from the buffalo that the family possesses. So उनके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी जिसमें वो और उसके तीनों लड़के मिलकर खेती करते थे. वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते थे, लेकिन हाँ उनके खाने के लिए उसमें से प्रोड्यूस हो जाता था, है ना. ये 1960s की बात बता रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस. उनका जो ऊपर एक्स्ट्रा इनकम जो होती थी वो किन से होती थी? बफेलो से हो पाती थी. दैट द फैमिली पोजेसेस, जो उस परिवार के पास थी. सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ द लैंड वाज डिवाइडेड अमंग द 3 सन्स. ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट वाज ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज. Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's sons are not able to make living from their land. They have to look for additional work during the part of the year. तो देखिए क्या हुआ कि पहले बड़ी ज़मीन थी, उसके बावजूद भी वो खाली उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे जितना उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी था. जो एक्स्ट्रा इनकम या जो पैसों की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ती थी उसके लिए वो उनके पास जो बफेलो था उससे गुजारा चलता था. कुछ साल के बाद गोविंद की जब डेथ हो जाती तो उसकी ज़मीन जो है वो जो 2.25 हेक्टेयर थी वो तीनों लड़कों में डिवाइड हो जाती है और एक लड़के को 0.75 हेक्टेयर ज़मीन मिल पाती है, 1 हेक्टेयर से भी नीचे. अब इतनी छोटी ज़मीन के साथ एक एक लड़के को तीनों को अलग अलग काम करना बड़ा मुश्किल था, है ना. इतना, जबकि मॉडर्न फार्मिंग आ गया था, है ना, जिसमें आपका HIV सीड, हाई इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी. बट उसके बावजूद भी वो इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे कि वो अपने लिविंग और स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए, जिसके लिए उनको एडिशनल साल के कुछ टाइम दूसरी जगहों पे काम करना पड़ता था ताकि वो थोड़ा पैसा और कमा पाए. तो कहने का मतलब कि लैंड साइज़ कम होने से इनकम और ज़्यादा कम हो जाती है. तो लैंड साइज़ मैटर करता है. You can see that large number of small plots scattered around the village in the picture. ऊपर जो पिक्चर बता रहा है, he is asking in that there is small size plots scattered all around the village. These are cultivated by the small farmers. One on the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. तो एक तरफ छोटे छोटे कई सारे खेत फैले हुए हैं और एक जगहों पे कई सारे बड़े बड़े खेत हैं. In the Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो 450 में 150 निकाल दिया और कितना था, 150 निकाल दिया, 240 निकाल दिया, तो लगभग 60 फैमिलीज ऐसी बची जो 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन पे खेती करती हैं. फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर. और भी कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ऊपर ज़मीन है जो रिमेनिंग है. अब जो पिक्चर 1.6 है वो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न दिखा रहा है, वीट क्रॉप का, प्लोइंग से लेके और उसका हार्वेस्टिंग तक.
है ना। तो वो प्रोसेस को आप देख सकते हैं, बफेलो सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो पूरा प्रोसेस दिखा रहा है। इन पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टीवेशन बाय द स्मॉल फार्मर। सीधी सी बात है, 1.5 में जो छोटे छोटे फील्ड है उसमें आप आराम से मार्क कर सकते हैं। वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। क्यों करते होंगे भाई? फैट लैंड जो है वो आगे जनरेशन बाय जनरेशन कम होती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है ना उसका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज एंड फार्मर्स, उसमें दो पाई चार्ट बने हुए हैं, कल्टिवेटेड एरिया का, एक नंबर ऑफ फार्मर्स का। अगर नीचे आप देखेंगे तो पिंक कलर जो है वो मार्जिनियल स्मॉल फार्मर्स का दिखा रहा है, जो कि 2 हेक्टेयर से भी नीचे काम कर रहे हैं। और इधर वाले डायग्राम में देखेंगे तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दिखा रहे हैं, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो कल्टिवेटेड एरिया का पाई ग्राफ देखेंगे तो 54.4, मतलब ज़्यादा सेक्शन जो है वो लार्ज फार्मर्स का है, जिनके पास कल्टिवेटेड एरिया ज़्यादा है। तो अगर पूरा लैंड निकाला जाए, फार्मिंग लैंड है पालमपुर का, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाए कितना परसेंट आदमी किस में काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है, स्मॉल फील्ड में, लार्ज फील्ड में, तो ज़्यादा लोग लार्ज फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा एरिया जो है वो लार्ज फील्ड वालों का है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि छोटी छोटी फील्ड जो है वो हैं, उनकी नंबर्स तो ज़्यादा है बट एरिया कम है, तो वो कल्टिवेटेड एरिया का पाई ग्राफ है। और इधर नंबर ऑफ़ फार्मर्स दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि जो छोटी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें 85% स्मॉल फार्मर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि पिंक सेक्शन किसका दिखा रहा है? मार्जिनियल और स्मॉल फार्मर्स का। तो दोनों ग्राफ्स के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, कल्टिवेटेड एरिया। तो एरिया के हिसाब से देखेंगे तो लार्ज फार्मर्स का एरिया ज़्यादा है, स्मॉल फार्मर्स से। बट वर्किंग वालों का देखेंगे तो स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कम एरिया में, जबकि 15% लार्ज फार्मर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं ज़्यादा एरिया में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा अनइवन है, बराबर नहीं है, है ना। कम ज़मीन पे ज़्यादा किसान काम कर रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन पे कम किसान काम कर रहे हैं। बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लैंड हो गया, है ना। अब लैंड हमने देख लिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी ज़मीन किसके पास है ना। ज़्यादा ज़मीन पे कम किसान खेती कर रहे हैं और कम ज़मीन पे ज़्यादा किसान खेती कर रहे हैं। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क। 1.6 में दिख ही रहा है कि आपका खेत को जोतने से लेकर फसल काटने तक के बीच में बहुत सारे लोग की, मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे तो नहीं बट लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए फार्मिंग जो है वो काफ़ी टफ वर्क माना गया है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। सी, अब इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वो सीधी सी बात है, दे एक्ट एज अ फार्म लेबरर्स फॉर द लार्ज फार्मर। अब जो लार्ज फार्मर है उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो अकेले तो खेती करेगा नहीं, तो ही नीड्स और ही रिक्वायर्ड लेबर्स हु वर्क ऑन हिज फील्ड। तो कौन वर्क करते हैं? द फार्मर्स हु हैव नो लैंड, जिनके पास कोई लैंड नहीं है और उनका ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग है। तो व्हाट विल दे डू? दे विल वर्क ऑन द फील्ड ऑफ लार्ज फार्मर्स। एंड वेयर एज जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जब वो अपनी फील्ड में काम कर लेते हैं और उससे भी उनका खर्चा नहीं निकलता, तो दे ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन द लार्ज फील्ड्स ऑफ लार्ज फार्मर्स। इससे क्या होता है? उनको थोड़ा बहुत पैसा और मिल जाता है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर्ड फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, तो वो फार्म लेबर को हायर करता है। वो 1.6 बता दिया उसने। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज, वो फैमिलीज जिनके पास ज़मीन नहीं, अभी बताया, तो जो जिनके पास नो फील्ड फॉर एग्रीकल्चर, एंड द फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिनके पास छोटी ज़मीन है तो उससे उनका गुजारा नहीं चलता, तो बाकी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो जो दूसरे के किसान हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन है उनके खेतों में काम करता है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। तो जैसे फार्मर क्या होता है, उसकी खेत में जो भी पैदा हो रहा है उस पर उसका पूरा अधिकार होता है, बट जो फार्म लेबरर्स की तरह काम करता है उनका उस क्रॉप में कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो खाली लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं। बट वो फार्मिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनको फार्म लेबरर्स कहा जाता है। अदरवाइज लेबर तो घर भी बनाता है। बट वाई दे आर कॉल्ड फार्म लेबरर्स? बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क ओनली, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर और फार्मिंग ओनली, but they are not doing on their own land, therefore they have no right over the crop grown on that land. Instead they are paid wages or the farmers from whom they work take
तो या तो उनको वेजेस दिए जाते हैं जो फार्मर्स के लिए वो काम कर रहे हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन द काइंड ऑफ क्रॉप, वो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। या तो वो उनको पैसा दे देगा थोड़ा सा, या तो उनको जो भी उगा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा दे देगा। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो, कुछ समय उनको खाना भी मिलता है काम करने के लिए। पर देखिए उनके लिए काम कर रहे हैं तो पैसा भी दे रहे हैं, या अनाज के फॉर्म में दे रहे हैं, या खाना भी दे रहे हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये कितना पैसा होगा इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये अलग अलग रीजन्स में चेंज होता रहेगा। अब मैं किसान हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और आप मेरे लिए खेती कर रहे हैं मेरी ज़मीन पे, तो मैं आपको कितना पैसा दूंगा ये मैं डिसाइड करूँगा। वेजेस वेरी फ्रॉम वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम फार्म टू फार्म, एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वेजेस डिपेंड करती है। वो फार्म लेबर क्या काम कर रहा है और उस काम में कितनी मेहनत लग रही है, लेबर लग रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको कितना पैसा दिया जाएगा। और ये हो गया। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरेशन पे भी सवाल है कि कितने समय के लिए काम करेगा। भाई पहले क्या होता था कि फार्म लेबर्स जो हैं वो पूरी फार्मिंग पीरियड में काम करते थे, बट अब क्या है कि जो बड़े किसान हैं जो ये काम करवाते हैं उनको पता है कि फिर उनको रेगुलर इनकम देना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको खाली जैसे सोइंग पीरियड है तब बुला लिए, हार्वेस्टिंग पीरियड है, फर्टिलाइज़र देना है, इंसेक्टिसाइड देना है, इरिगेशन के लिए रख लिया, तो जब जो ज़रूरत पड़ती है बस उसी समय वो उनको हायर करते हैं ताकि उनको कम पैसा देना पड़े, है ना। तो उनके ड्यूरेशन पे, एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन पे बहुत सवाल है कि इनके फार्म लेबरर्स के। अब फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस पे भी हो सकता है, और ऑन द पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, है ना। तो अभी मैंने बताया या तो वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हायर किया जा सकता है या डेली बेसिस पे काम किया जा सकता है, और या तो उसको पूरे साल के लिए भी रखा जा सकता है। डाला इज़ अ landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. वो डेली वेजेस पे है डाला, तो इसीलिए उसको हर रोज़ नए काम की ज़रूरत रहती है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। आपने देखा होगा कि मार्केट में भी रोड्स में कई सारे लेबर्स बाहर से काम करने आते हैं, वो डेली वेजेस वर्कर होते हैं। उनको रोज़ सिटीज़ में आते हैं और काम की तलाश करते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयड नहीं है, उनको काम रेगुलर नहीं है, वो रोज़ आएंगे, काम ढूंढेंगे, फिर करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, उनको डेली वेजेस कहते हैं। दिस मीन्स दैट दे मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसका मतलब उनको हमेशा काम की तलाश रहती है। द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे, मार्च 2017 में। बट ये बहुत 2017 तो बहुत रिसेंट हो गया, उसके पहले। बट दाला गेट्स ओनली ₹160। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने तो तय कर दिया, बट देने वाला डिसाइड करेगा ना कि उसको कितना देना है। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। अब पालमपुर में लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स इतना है कि उसमें कंपटीशन रहता है, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है, तो सीधी सी बात है हैवी कंपटीशन बना रहे। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस। जब लोग ज़्यादा होंगे और काम कम होगा तो आदमी कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कर देगा, वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा कर देगा। दाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर्स। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन विलेजेस। टेक विलेज, तो पालमपुर के अंदर ये रामकली और दाला दोनों बहुत गरीब किसान हैं, और वो दाला जो है अपनी कहानी, कंप्लेंट जो है, जो शिकायत है ये इनकम की, वो रामकली को बता रही है। ऊपर स्टोरी है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। ऊपर जो दाला और रामकली की स्टोरी दिखा रहा है, अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ये शिकायत कर रहा है कि इस समय काम ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लार्ज फार्मर हायर करते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। फिर वो रामकली क्या बताती है, ज्ञानसन अ लार्ज फार्मर, ज्ञानसन जो है वो गांव का एक लार्ज फार्मर है, हैज़ जस्ट बॉट हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ इन द होल ईयर। अब वो कह रही है कि जो ज्ञानसन है, जो बड़ा किसान है, उसने इस साल तो हार्वेस्टर भी खरीद लिया है, अब उनको हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम भी नहीं मिलेगा। पिछले साल तो सिर्फ 5 ही महीने उसको काम मिला, है ना। तो मतलब मॉडर्न फार्मिंग में उसने एक हार्वेस्टर खरीद लिया। वी हैव tractor for plowing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide, है ना। This year I have to look for work in the brick making unit in रायगंज। अब रायगंज वहाँ पे नज़दीकी एक बड़ा विलेज था, वही वो कह रही है कि अब खेती तो नहीं, मतलब ये फार्मिंग में तो काम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मशीन आ गई है। पिछले साल तो 5 महीने काम किया था, अब इस साल वो सोच रही है कि जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं रायगंज में,
इस बार वो वहाँ जाके काम करेगी। आई ओ अ लोकल मनी लेंडर फॉर ₹2000। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर when no work was available in the field. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meal. कह रहा है पिछले साल उसने मनी लेंडर से 1000 रुपये लिए थे समर में, जब उसके पास कोई काम नहीं था। अब उसके लिए उसको वापस देना बड़ा मुश्किल हो रहा है और दिन में 2 समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू द पास्ट डेप्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। और रामकली भी कह रही है कि उसकी भी सिचुएशन ज़्यादा बेटर नहीं है। पिछले जो उसने उधार लिया है वो वापस नहीं लौटा पा रही है, जिसकी वजह से मनी लेंडर उसको और पैसा देने से मना कर रहा है, रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। चलिए, थैंक यू। इससे दिख रहा है कि स्मॉल फार्मर्स या जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं विलेज में। थैंक यू क्लास।